सो मैं ये कोर्स के थ्रू फोटोशॉप तो धीरे धीरे सीख ही रहा हूँ और साइड बाय साइड मैं जो फ्रीलांसर है वहाँ पे बिड्स भी प्लेस करता रहता हूँ। Hey guys, welcome back to another episode of The Journey. It is The Journey 004 और इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि कभी कभी नहीं, मोस्टली जो है वो जो द जर्नी के एपिसोड्स होते हैं उसमें चेंजेस होते रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मैं सारे वीडियोस पिछले वीडियो की तरह बनाऊँ जिसमें मैं आपको पूरा अपना डे दिखाऊँ विथ डिसेंट शॉर्ट्स, टाइम लैप्सेस एक्सेट्रा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, मैंने पहले वो चीज़ ट्राई की बट डूइंग दैट इज़ रिजल्टिंग इन अ लैक ऑफ टाइम फॉर माई मेन थिंग्स, विच मीन्स कि अगर मैं बस डॉक्यूमेंट करने में ही लगा रहूँगा तो जिस चीज़ को मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वो फिर ग्रो नहीं कर पाऊँगा मैं, मुझे उतना टाइम मिलेगा नहीं। वो इसलिए क्योंकि वैसे जो वीडियो वैसे उस तरीके से उसको एडिट करने में बहुत टाइम लगता है एंड माई लैपटॉप इज़ ऑल्सो अ बिट लैगी, सो उसमें और टाइम जाता है एंड वीडियो की फाइल साइज़ भी बड़ी बनती है तो अपलोड करने में भी ज़्यादा टाइम जाता है। सो फॉर द टाइम बीइंग आई विल बी पोस्टिंग 1 video a week where I will give you a review, like a week in review. So I will be doing 1 video per week for the time being. अगर आगे मुझे और अच्छे थोड़े रिसोर्सेज मिल जाते हैं एंड टाइम थोड़ा ज़्यादा है तो हो सकता है मैं कुछ अलग भी करूं, बट that's what it is. I'll be experimenting different things in the episodes of the journey. So ऐसा नहीं है कि कुछ एक ही टाइप की वीडियोस होंगी, but one thing is for sure, I'll document what I do. सब कुछ बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या प्रोसेस होता है उसका, and what I did in last week, some tips for you, and that's how it'll go. So after uploading the Journey 003 video, I took a day to show all of you how my day looks like. I did that on Instagram. You can check that highlight, a day in my life. उस highlight में आप सब कुछ देख सकते हो कि how my day looks like, what I do, and कितना टाइम लगता है, हर चीज़ों में सब कुछ देख सकते हो। हर एक जो स्टोरी है उसमें आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा कि तब क्या टाइम हुआ था, so you can go check out that story highlight. So I did that, a day in my life thing. Every day is different, but you can go check that out. I did that on Monday, I think, so you can go check that out, a day in my life. And then I have started this challenge called this 75 hard. Now 75 hard is a challenge to develop mental toughness, grit, perseverance, confidence, hard working nature and things of that nature. So if you take this challenge 75 hard, which I have took, and you follow the complete regimen without any compromise, then you can 100x your traits like confidence and hard work and motivation and things like that. So अगर आपको पता नहीं है कि ये 75 hard क्या है, so you can go listen to the podcast of Andy Frisella. वहाँ पे आपको ये एपिसोड मिल जाएगा 75 hard, so you can go listen to that. And if you want to maximize traits like that, then you can go take that challenge. So I have started that challenge and today is day 5, मतलब जब मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, so it is day 5, 70 more days to go, but I'm feeling the results in just 5 days. I'm feeling a lot of results in motivation and work ethic and things like that. So I will highly recommend you all to take that challenge. अब सब तो नहीं कर पाएंगे, बहुत कम लोग होंगे। मुझे खुद पे भी कभी कभी डाउट होता है कि मैं 75 डेज़ के एंड तक पहुंच भी पाऊंगा या नहीं, बट स्लोली एंड स्लोली जैसे जैसे आप डेज़ कंप्लीट कर जाओगे 1 2 3 4, फिर आप धीरे धीरे उससे एडिक्टेड होते जाओगे एंड यू विल नॉट विश टू लीव दैट. सो यू कैन गो टेक दैट चैलेंज. एंड आई ऑर्डर्ड दिस बुक Pajama Profit, which is by Varun Maya. So I ordered this book because I wanted to know how to proceed in freelancing, how to start, and a complete guide. And I knew Varun Maya through Instagram, and I came to know that he has a book called The Pajama Profit, and so I bought it. Pajama Profit, if you want to buy it, I will leave the link in the description. सो आई बॉट दिस बुक एंड बुक तो बहुत ज़्यादा अच्छी है. बुक में आपको पूरा एकदम गाइड मिल जाएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको अपना फ्रीलांस करियर जो है वो बिल्डअप करना है और यू कैन अर्न साइड इनकम फ्रॉम दीज मेथड्स. सो यू विल सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा क्या क्या करना है. वैसे सिर्फ अगर आप वेबसाइट पे चले जाओगे अपवर्क पे या फ्रीलांसर पे तो आपको सब कुछ नहीं पता चलेगा कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे, बट दिस बुक विल प्रोवाइड यू अ कंप्लीट गाइड. सो इट इज़ अ वेरी गुड बुक. You can
Purchase it if you want. I will leave the link in the description. Only purchase this if you are serious about starting freelancing. Otherwise this book is just for freelancing. और पूरी टैक्टिकल बुक है, ऐसा नहीं है कि कुछ मोटिवेशनल एडवाइस या वो, सब कुछ एकदम प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं और सारे टैक्टिक्स लिखे हुए हैं कि कैसे आपको अपने फ्रीलांस करियर को बिल्ड करना है. इसलिए इसकी कुछ समरी तो पॉसिबल नहीं होगी. इट इज़ अ वेरी प्रिसाइज बुक बाय द वे, ओनली 132 पेजेस, बट हर पेज पे कुछ ना कुछ एकदम एक टैक्टिक था या फिर एक टिप थी. सो उसकी समरी तो पॉसिबल नहीं होगी, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, बट यू कैन डेफिनेटली बाय इट इफ़ यू वांट टू build your freelance career. So I have decided that I will do freelancing around graphic designing. So graphic designing अभी मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ. I have started learning Photoshop, Adobe Photoshop, and you can learn that from YouTube or Google, but YouTube, Google पे एकदम सब कुछ structured way में नहीं आता है. If you just want to learn basic things, वो तो आप Photoshop से सीख जाओगे, but if you are starting freelancing, जहाँ पे आपको एकदम you have to become a professional at it to get more clients and make them satisfied. So अगर वो करना है तो आपको एकदम structured way में सीखना पड़ेगा उसको. So इसलिए मैं गया Udemy पे and I bought this course. वो मुझे कोर्स जो है वो पड़ा 850 रुपीज़ में. एक्चुअली ये कुछ 12 या 13,000 रुपीज़ का था, बट 94-96% कुछ डिस्काउंट चल रहा था. वैसे Udemy पे ज़्यादातर टाइम डिस्काउंट्स चलते ही रहते हैं, बट दिस वाज अ क्रेजी डील एंड दिस इज़ द बेस्ट सेलर फोटोशॉप कोर्स. सो आई बॉट दिस कोर्स एंड द रीज़न आई बॉट दिस इज़ आई नो हाउ टू गेट इट फॉर फ्री. आपको भी बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि ऐसी पेड चीज़ें कैसे फ्री में लेते हैं इंटरनेट से, बट आई डिडंट डू इट बिकॉज द फर्स्ट रीज़न वाज कि वो जो पूरे कोर्स की फ़ाइल थी अगर मुझे फ्री में डाउनलोड करनी होती तो वो थी 8 GB की, अप्रॉक्स 8 GB की. तो पहली बात तो मुझे डाउनलोड करने में पता नहीं कितने दिन लग जाते, एक एक दिन करके धीरे धीरे करना पड़ता, एंड टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी. सो फर्स्ट रीज़न वॉज दैट. सेकंड रीज़न वॉज जो सर्टिफिकेट होता है, मतलब अगर मैं ये कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ तो एंड में एक सर्टिफिकेट आता है. आई वॉज नॉट श्योर कि अगर मैं वो फ्री ऑल्टरनेटिव के साथ जाऊँगा तो मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा भी या नहीं. 99% तो मुझे ऐसा ही लग रहा है अभी भी कि उसमें अगर मैं वो वहाँ से डाउनलोड करके करता तो फ्री वो जो है सर्टिफिकेट नहीं मिलता. सो वो सर्टिफिकेट की जो है वो लॉन्ग टर्म वैल्यू बहुत है. दैट सर्टिफिकेट कैन प्रूव दैट आई हैव कंप्लीटेड दिस फोटोशॉप कोर्स एंड आई एम प्रोफेशनल एट दैट जब मैं उस कोर्स को कंप्लीट कर लेता हूँ. सो द सेकंड रीज़न वाज दैट, एंड द थर्ड रीज़न वाज आई वॉन्टेड टू स्टार्ट री इन्वेस्टिंग माई मनी. लाइक पहले आपको ऐसा लगेगा कि येस व्हेन आई विल अर्न मनी आई विल री इन्वेस्ट दैट इन दिस, री इन्वेस्ट दैट इन दैट, बट ऐसा सबके साथ नहीं होता है. बट मेरे साथ क्या हुआ, आई अर्नड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम यूट्यूब एंड एफिलिएट मार्केटिंग ऑल्सो, बट टू री इन्वेस्ट दैट आई थॉट अ लॉट के करूँ या नहीं करूँ. हर बार मैं फ्री ऑल्टरनेटिव के साथ जाता था, but this time I thought no, let's start reinvesting the money because पहले दो रीज़न तो थे ही, but reinvesting is better. Simply saving money does no good to you. If you reinvest it into productive assets and productive things like this, then it can give you a lot of return. So these were the 2-3 reasons because of which I bought this course. If you want to buy this, अभी भी शायद डील चल रही हो, so you can go purchase it. And if you don't have the money to buy it, most of you have the money, stop going to movies and hanging out and spend those 850 rupees in this course. But if you really don't have money, then you can learn the basics from Google and YouTube about एनी सॉफ्टवेयर आउट देयर. सो मैं ये कोर्स के थ्रू फोटोशॉप तो धीरे धीरे सीख ही रहा हूँ, और साइड बाय साइड मैं जो फ्रीलांसर है वहाँ पे बिड्स भी प्लेस करता रहता हूँ. जो फ्रीलांसर का फ्री प्लान है उसमें यू कैन प्लेस 8 बिड्स पर डे आई थिंक. सो जो मुझे साइड में टाइम मिलता है वो मैं बिड्स प्लेस करता रहता हूँ. जितने भी मुझे प्रोजेक्ट्स लगते हैं जिनको मैं अभी इस लेवल पे कंप्लीट कर सकता हूँ, लाइक पॉडकास्ट अगर किसी को चाहिए तो वो तो मुझे पूरा आता ही है, तो मैं उनके जो बिड्स होते हैं उस पर तो बिड कर ही देता हूँ उन प्रोजेक्ट्स पे. और अगर कोई सोशल मीडिया या वीडियो एडिटिंग, इंस्टाग्राम ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे भी मैं बिड प्लेस कर देता हूँ. सो आई प्लेस 8 बिड्स अ डे. हर बार 8 नहीं होता है, कभी अगर मुझे कम प्रोजेक्ट्स मिले तो कम पे बिड करता हूँ. सो आई सॉ दिस प्रोजेक्ट वेयर अ पर्सन वांट्स टू क्रिएट अ पॉडकास्ट एंड ही वांट्स अ फ्रीलांसर टू डू दैट फॉर हिम. सो मैंने उनको पिच किया एंड ही गेव मी अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स. ही इज डिस्कसिंग डिफरेंट थिंग्स विथ मी ऑन व्हाट्सएप राइट नाउ एंड लेट्स सी वेदर और नॉट आई एम एबल टू क्लोज हिम. सो कोर्स तो सीख ही रहा हूँ धीरे धीरे फोटोशॉप का, एंड साइड बाय साइड मैं बिड्स प्लेस करता रहता हूँ. क्या पता कभी कोई क्लाइंट मिल जाए, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें तो आती ही हैं, जैसे पॉडकास्टिंग, कैसे पॉडकास्ट को सेटअप करना है,
वीडियो एडिटिंग, अगर किसी को इंस्टाग्राम के लिए कुछ एडिट करवाना है, कुछ बेसिक जो ग्राफिक्स होते हैं जैसे कि थंबनेल्स, पोस्टर्स एंड अदर डिज़ाइंस, वो भी मुझे आती है। क्योंकि जो पिछले 2 साल मैंने चीज़ें की अलग अलग, जैसे कि बेस्ट ऑनलाइन डील्स इंडिया, प्रोजेक्ट लैंड, इन सब में जो ग्राफिक्स जो भी थे वेबसाइट पे या फिर ऐप पे या फिर जो एंटरप्रेन्योर लैंड के जो पोस्ट होते थे, ये जो सारे ग्राफिक्स थे वो मैं खुद ही सीख के बनाता था। सो मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बेसिक नॉलेज तो आ गई है, जो एडवांस है वो सीख रहा हूँ। सो आई एम learning Photoshop, and on the side I try to get clients, and I have also made this Instagram page with the handle contentfactory_IG। कंटेंट फैक्ट्री जो पेज है वहाँ पे मैं अपने सारे जो भी फ्रीलांस वर्क्स होते हैं, जो भी फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर मैंने कुछ कंप्लीट किया है तो मैं वहाँ पे उसको पोस्ट कर दूंगा। यू कैन फॉलो दैट पेज इफ़ यू वांट टू चेक माय फ्रीलांस वर्क। सो वो पेज मैंने इसलिए बनाया है, और उस पेज के थ्रू मैं DM के थ्रू भी ट्राई करूँगा क्लाइंट्स लेने के लिए। अब वो हो सकता है मुझे वन टाइम क्लाइंट्स मिले, हो सकता है रिकरिंग भी मिल जाए। वन टाइम क्लाइंट्स वो होते हैं जो मैंने उनके लिए कुछ प्रोजेक्ट किया या फिर कुछ ग्राफिक डिज़ाइन किया, कुछ भी एडिट करके दिया, एंड दे पेड मी वॉट एवर वॉज द अमाउंट, एंड दैट्स इट, द थिंग इज़ ओवर। रिकरिंग क्लाइंट वो होता है जिसके लिए बार बार काम करते रहना पड़ता है एंड बार बार जो पेमेंट है वो भी आती रहती है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन सेड दैट मैनेज माई इंस्टाग्राम अकाउंट, सो आई कैन चार्ज देम मंथली, एंड दैट इज़ रिकरिंग क्लाइंट। मतलब हर मंथ जो है मैं उनका इंस्टाग्राम हैंडल जो है मैनेज करता रहूँगा, एंड ही कैन पे मी वॉट एवर द अमाउंट इज़ देयर। सो ये होता है वन टाइम क्लाइंट और रिकरिंग क्लाइंट। सो कंटेंट फैक्ट्री के थ्रू मैं इन्फ्लुएंसर्स को और कुछ और लोगों को जिनको मुझे लगता है कि मेरे क्लाइंट बन सकते हैं उनको मैं DM भी करूँगा। सो दिस पेज हैज़ 2 benefits. One, I will post my freelance work, and the second one is that I will be able to pitch different clients. So अगर आपने इस पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया, you can go follow that. सो दीज वर द फ्यू अपडेट्स ऑफ दिस वीक। अभी से जो है मैं वो द जर्नी के ऐसे एपिसोड्स अपलोड करने वाला हूँ। लाइक फॉर द टाइम बीइंग आई विल अपलोड 1 episode per week, and if you want to follow my day, I mean keep a check on my day that what all I am doing, you can follow me on Instagram। वहाँ पे स्टोरी डालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उस सब चीज़ को व्लॉग करने में या फिर एडिट करने में फिर अपलोड करने में बहुत टाइम जाता है, बट स्टोरी इज़ अ क्विक feature which I can use to document my day. So if you want to keep a check on every day, you can go follow me on Instagram. If you use Snapchat, you can add me there. I'll also be posting those stories there. एंड YouTube पे भी मुझे स्टोरीज़ का फीचर कब का मिल गया है, पर मैं बार बार भूल जा रहा हूँ वहाँ पे स्टोरीज अपलोड करना। आई विल स्टार्ट अपलोडिंग स्टोरीज ऑन YouTube also. So that's it for this video. I hope you liked this video, and if you did, make sure you give it a thumbs up, comment what you did in your last week, and I'll see you later.